And today we are going to begin our session. We have with us His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj. So His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj was born in Puri in 1953. After completing his graduation, he came in contact with ISKCON devotees and he joined as a full-time devotee in 1981. And soon after, he became the disciple of His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. Maharaj served in various aspects, especially he helped a lot in Odia translation of books with His Holiness Gaur Govind Sai Maharaj in Bhubaneswar. He also translated teachings of Lord Kapila in Odia. He served as Vice President from 1984 to 1989 in ISKCON Kolkata. Then he shifted to ISKCON Govardhan and served His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj and also helped to develop the ISKCON Govardhan project. He was a president there also from 1999 till 2004. And Maharaj took sannyas in 2003 and became an initiating spiritual master in 2007. Also, he is handling the General Secretary responsibility for Odisha since 2009. Maharaj is preaching in Bhubaneswar and different parts of India. He is very fluent in Odia, Hindi, English and Bengali. As you can see on the screen, Maharaj is with His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj at Bhubaneswar, ISKCON. So also Maharaj has been very merciful in ISKCON Ujjain devotees. He keeps coming in Srila Prabhupada Memorial Festival most of the time. So we are very grateful to Maharaj for accepting our humble invitation and coming here to bless us with this wonderful association. And let us express our gratitude to Maharaj and welcome him in Srila Prabhupada Memorial Festival by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. So, garland. Keshav Prabhu, please offer the garland to Maharaj. So now we will hear from His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj. And at 6 p.m. there will be Srila Prabhupada Katha by His Holiness Bhanu Swami Maharaj. And at 7 p.m. we have Srila Prabhupada Katha by His Holiness Kavi Chandra Swami Maharaj. And then by His Grace Vasugosh Prabhu. So 5:30, I will continue with 6:50. Okay. Okay. So by 6 o'clock I shall finish. Okay. Okay. Yes. Do you have any?
Do you have clock or something teleclock that will be the practice? ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं शगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् शगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So today we are going to discuss about our founder Acharya Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, who preached Krishna consciousness all over the world for the benefit of mankind. Actually, it was the prediction of Sri Chaitanya Mahaprabhu that the holy name of the Lord would spread all over the world in every town and village. Oh, okay. तो हमें बताया गया कि आप लोगों के लिए हिंदी भाषा सुविधाजनक रहेगी, इसलिए हम हिंदी में बोलेंगे। हरे कृष्ण।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी कि पृथ्वी ते आछे जाते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मेरा नाम। समग्र पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम हैं, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो इस भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही यह व्यवस्था की थी, श्रील प्रभुपाद के रूप में, जिनका आविर्भाव 1896 साल में कोलकाता शहर में हुआ था। और ये भविष्यवाणी केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की नहीं थी, उनके साथ साथ हमारे वैष्णव परंपरा, गुरु परंपरा में महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही भविष्यवाणी की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के ऊपर उनकी दृढ़ आस्था होने के कारण श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि वो दिन कब आएगा जब यूरोप, अमेरिका के वैष्णवगण भारतीय वैष्णवों के साथ एक साथ मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान नवद्वीप धाम मायापुर में हरे कृष्ण कीर्तन करते रहेंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही स्वप्न देखा था और उनके सुयोग्य पुत्र हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा और श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए अपने शिष्य श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज को यही आदेश दिया था कि विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम का प्रचार करना। तो श्री प्रभुपाद यद्यपि इस आदेश को युवावस्था में प्राप्त हुए थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से, जब उनकी भेंट उल्टा डंगा में वहां पर जो आश्रम था वहीं पर हुई थी, किंतु श्री प्रभुपाद उस समय इस आदेश को कार्यान्वित नहीं कर सके थे। सर्वप्रथम प्रभुपाद महाराज, जो कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज के विद्यार्थी थे, अपना ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट करने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में अंशग्रहण किया था और महात्मा गांधी की जो उस समय पुकार थी कि विदेशी डिग्री को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि महात्मा गांधी सोचते थे कि यह अंग्रेजी शिक्षा ये दासत्व का प्रतीक है, ये भारतीयों को अंग्रेजों का दास बनाने के लिए उद्दिष्ट है। और सत्यता यही थी कि अंग्रेजों ने अपना दास बनाने के लिए भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की, जिसके द्वारा भारतीय अपने धर्म, अपनी संस्कृति को भूल जाएं, उस पर उसको अंधविश्वास कहकर उस पर अपना जो विश्वास उसको त्याग दें और विदेशी संस्कृति को ग्रहण करें। तो श्रील प्रभुपाद ने अपनी डिग्री को त्याग दिया था। यद्यपि वो कृतकारी हुए थे परीक्षा में, किंतु उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट लेना उन्हें नहीं चाहा। और उस समय जब वो अपने मित्र के द्वारा प्रेरित होकर गए थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिलने के लिए उल्टा डंगा रोड पर, तो उनको देखकर श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने
सर्वप्रथम यही कहा था कि तुम लोग जैसे शिक्षित युवक अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हमारी भारतीय धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रचार विदेश में जाकर करो। तो उस समय प्रभुपाद ने प्रतिवाद किया था। प्रभुपाद ने कहा था कि जिस देश पराधीन है, जिस देश में देश के लोग पराधीन हैं, उस देश के लोग विदेश में जाकर इस सनातन संस्कृति के बारे में जब बोलने लगेंगे तो उनकी बात को कौन सुनेगा। किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि कृष्ण चेतना, ये सनातन संस्कृति देश की पराधीनता और स्वाधीनता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ये सनातन है और सृष्टि के आदि काल से ये सनातन संस्कृति चलती आ रही है। गीता भागवत की वाणी आदि काल से है और जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे गीता भागवत की वाणी सर्वत्र ये परिव्याप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि ये जो साधु, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर अनेक साधुओं को देखा था, उनके पिताजी परम वैष्णव थे और उनके घर पर बहुत सारे साधु संत आते थे, किंतु सभी साधु संत ऐसे कोई भगवत चेतना में प्रबुद्ध नहीं थे और प्रभुपाद इसको जानते थे। इसलिए साधु संतों के प्रति उनके मन में गंभीर आस्था नहीं रही। किंतु जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और उनसे वार्तालाप हुआ तो धीरे धीरे प्रभुपाद, क्योंकि बचपन से गीता भागवत के प्रति आकृष्ट थे, राधा कृष्ण की सेवा कर रहे थे, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल रहे थे, इसलिए उनकी आस्था भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में थी। और जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको समझाया तो वो धीरे धीरे वो आकृष्ट हुए उनके प्रति। और चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी इस समग्र विश्व में इस हरिनाम का प्रचार होगा, श्रील प्रभुपाद ने उसको ग्रहण किया। किंतु उस समय वो गृहस्थ थे, इसलिए इस कार्य को करने के लिए वो उतना उत्साहित नहीं हुए, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके हृदय में एक अमिट छाप छोड़ दिया था। तो बाद में जब श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे थे, वहां से जब वो प्रयागराज चले गए और अपना फार्मेसी वहां पर खोला, प्रयागराज फार्मेसी, तो वहां पर श्रील प्रभुपाद 1932 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रयागराज आए हुए थे, तो वहां पर उनसे दीक्षा ली और वो स्वयं वहीं से प्रचार कार्य करने लगे। किंतु इस प्रचार कार्य में उनकी पत्नी सहयोग नहीं दे रही थी। जब श्रील प्रभुपाद महाराज उस समय कुछ भद्र व्यक्तियों को अपने घर पर बुलाते और उनको गीता पर प्रवचन देते, गीता पर बात करते, तो उस समय उनकी पत्नी दूसरे कमरे में चली जाती थी और वहां जाकर चाय पीती थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बहुत समझाया, किंतु वो अपनी रीति नीति को छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं थे।
तो प्रभुपाद ने सोचा कि हो सकता है यही कृष्ण की इच्छा भी है। तो दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो गौड़ीय मठ के कार्य से अधिक जुड़े और गौड़ीय मठ के कार्य में बम्बे जाते रहे और 3-4 साल में 32 से 36 श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का देहांत 1936 में हुआ था। तो 4 साल के भीतर जब कभी उनका कार्य कलकत्ता में पड़ता था, व्यावसायिक कार्य, तो वो ये निश्चित करते थे कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता में उस समय हो, तो उसी समय वो कलकत्ता जाते, जिससे कि उनका व्यावसायिक कार्य भी होगा और अपने गुरु महाराज से भेंट भी होगी। तो 4 साल में उन्होंने 12 बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भेंट की और उसके पश्चात जब 36 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शरीर छोड़ने जा रहे थे, उससे 1 महीने पहले श्रील प्रभुपाद जी ने उनके पास एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि गुरु महाराज, मेरे प्रति आपका अंतिम आदेश क्या है। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा कि मैं यही चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विदेश में जाकर इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करो और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक करो। तो श्री प्रभुपाद समझ गए कि उनके गुरु का यही आदेश है, जबकि ये 2-3 बार दोहरा चुका है। तो श्री प्रभुपाद अब सोचने लगे कि इस कार्य को कैसे करें। गृहस्थी में रहकर इस कार्य को करना ये संभव नहीं था। यद्यपि श्री प्रभुपाद अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे प्रचार करने के लिए, किंतु उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आ रही थी। तो जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार आए थे राधा कुंड में, तो उस समय प्रभुपाद जी जाकर मिले थे राधा कुंड में और उस समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी से एकांत में कहा था, क्योंकि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय अपने शिष्यों की अवस्था को देखकर बहुत असंतुष्ट थे, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो एक दिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को बुलाया एकांत में और उन्होंने कहा कि ये लोग आपस में अभी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा का कारण क्या है कि जो मंदिर बना है कलकत्ता में, उसमें जो सब कमरे बने हैं भक्तों के रहने के लिए, ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि कौन किस कमरे में रहेगा, इसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि यदि प्रचार के लिए मंदिर का मार्बल बेच देना पड़े, तो मैं चाहूंगा कि मंदिर का मार्बल बेचकर मैं ग्रंथ छापूं और इसको प्रचार कार्य में लगाऊं। तो इस प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर असंतुष्ट होकर बोल रहे थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अभी मैं जीवित हूं तो ये लोग ऐसा हो रहे हैं, तो मेरी मृत्यु के पश्चात गौड़ीय मठ की अवस्था क्या होगी, ये जरूर आग लगेगी।
और ये आग हमारे प्रचार अभियान को भस्मीभूत कर देगी। और वस्तुतः वही हुआ। श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले जाने के बाद गौड़िया मठ में लड़ाई झगड़ा इतने दूर तक चला गया कि कोर्ट कचहरी में चला गया और गौड़िया मठ विखंडित हो गया, जिससे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो प्रचार अभियान चलाया था श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए, विशेष रूप से भारत में, वो अभियान शिथिल पड़ गया। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को विदेश भी भेजा था, लंदन उन्होंने भेजा था, किंतु लंदन में ये लोग गए थे किंतु उतना सफल नहीं हो पाए। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को ये आदेश दिया और उनको दृढ़ विश्वास था कि श्रील प्रभुपाद इस आदेश को पालन करने में सफल रहेंगे। तो जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए इस धराधाम को छोड़कर, श्रील प्रभुपाद जी महाराज उस समय वो चाह रहे थे कि भारत में कुछ प्रचार कार्य आरंभ करने के लिए, तो प्रयागराज से वो झांसी जाते थे और झांसी में जाकर किसी एक व्यक्ति जो प्रयागराज फार्मेसी में आते थे, प्रभुपाद से मिलते थे, उनसे कुछ व्यवसायिक संबंध था, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था प्रभुपाद जी को झांसी में गीता पर प्रवचन करने के लिए। तो प्रभुपाद जी गए थे वहाँ झांसी गीता पर प्रवचन करने के लिए और बहुत सारे शिक्षित मान्यगण व्यक्ति आए हुए थे। तो सभी लोगों को प्रभुपाद का प्रवचन अच्छा लगा। तो कई बार इस प्रकार जब प्रभुपाद ने वहाँ प्रवचन देकर कुछ लोगों को इकट्ठा किया, तो वो सोच रहे थे कि वहाँ कुछ एक केंद्र खोला जाए और इसके लिए उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का रजिस्ट्रेशन भी किया था। किंतु जहां पर वो अपना केंद्र खोलना चाहते थे, लीग ऑफ डिवोटीज का प्रचार केंद्र, बाद में गवर्नर की पत्नी ने उसको महिला क्लब बनाने के लिए उसको ले लिया। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रथम प्रयास में विफल रहे और उन्होंने देखा कि इसमें भी बाधा उत्पन्न हुई और उसी समय उनको प्रयागराज से समाचार मिला कि उनके प्रयाग फार्मेसी में जो लोग काम कर रहे थे, कर्मचारी लोग, ये लोग वहां चोरी करके से भाग गए। पैसा और जो सामान था उसको लेकर भाग गए। तो प्रभुपाद जी पहले तो दुखी हुए, किंतु बाद में सोचा कि यही कृष्ण की इच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जस्याहं निगृणामि हरिस्य तद धन सने, मैं जिस पर कृपा करता हूं, क्योंकि व्यक्ति जब धन के मद से अत्यधिक अहंकारी बन जाता है तो भगवान के चरणों में वो अपने को समर्पित नहीं कर सकता। ये धन अहंकार वृद्धि में एक कारण होता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदहपुमा, तो ये उच्च कुल में जन्म होना और अत्यधिक सुंदर होना, अत्यधिक धन को प्राप्त होना,
और विद्वता को प्राप्त हो, पांडित्य, ये सब अहंकार में वृद्धि करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिस पर हमारी कृपा होती है, पहले मैं उसका धन हर लेता हूं। क्यों हर लेता हूं? इसलिए कि जब व्यक्ति का धन चला जाएगा तो उसको कोई पूछेगा नहीं। जब तक व्यक्ति के पास धन है, परिवार वाले पीछे दौड़ेंगे, आत्मीय स्वजन पीछे दौड़ेंगे, बाहर के लोग सब पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि उनको धन प्राप्ति की अभिलाषा है। और जब व्यक्ति धन शून्य हो जाता है तो कोई उसके पास नहीं आता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसके पास धन नहीं है, हम जाएंगे तो वो मुझे धन मांगेगा। तो इसलिए वो व्यक्ति निस्व बन जाता है। उसका कोई अपना नहीं रह जाता है जब वो उसके पास धन नहीं होता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? बाध्य होकर भगवान कृष्ण की शरण में जाएगा। निराश्रयमं जगदीश रक्ष। जब व्यक्ति निराश्रय बन जाता है तो भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करेगा, वो बाध्य होगा प्रार्थना करने के लिए। तो ये भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मेरी कृपा होती है, मैं उसका धन पहले हरण कर लेता हूं। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये कृष्ण की अवश्य कृपा है कि अब मेरी जो आसक्ति थी व्यवसाय के प्रति, क्योंकि परिवार को चलाना है तो व्यवसाय आवश्यक था, तो हमारी जो आसक्ति थी जिसके कारण मैं प्रचार कार्य में अपना पूरा समय नहीं दे पा रहा था, अब भगवान कृष्ण ने उस आसक्ति को दूर कर दिया। बिजनेस फेल हो गया और उनके परिवार वाले कलकत्ता लौट गए। तो प्रभुपाद ने सोचा कि अब मुझे क्या करना है, अब कृष्ण की सेवा में अपना समय व्यतीत करना है। तो फिर वो पहले कलकत्ता गए इस आशा से कि कलकत्ता में भी उनका एक बिजनेस था, चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वहां जाकर कुछ बिजनेस से धन लाएंगे और इस प्रचार कार्य में लगाएंगे। इसलिए वो कलकत्ता गए और अपने घर पर रुके और वहां पर जब वो कुछ लोगों को बुलाकर घर पर प्रोग्राम कर रहे थे तो वहां पर भी वही स्थिति उत्पन्न हुई, उनकी पत्नी साथ नहीं दे रही थी। तो प्रभुपाद ने उनको बार बार कहा कि तुम चाय छोड़ दो, उनकी पत्नी से कहा, किंतु वो उनकी पत्नी नहीं सुन रही थी। तो एक बार प्रभुपाद ने देखा कि उनका जो ग्रंथ था, श्रीमद् भागवत का ग्रंथ, वो कहीं बाहर गए हुए थे। आकर जब श्रीमद् भागवत का ग्रंथ खोजा, देखा कि वो नहीं है घर पर। तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि श्रीमद् भागवत का ग्रंथ कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि हमने बेच दिया है। किस लिए? ना बेच करके चाय खरीदने के लिए हमने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बेच दिया है। तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो गए और प्रभुपाद ने कहा कि अब तो तुम्हें ये निश्चय करना है कि तुम्हें चाय चाहिए, तुम चाय चाहती हो या मुझे? तो उनकी पत्नी ने मजाक में ही कहा कि अब तो मुझे हमारे पतिदेव को त्याग करना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि बहुत अच्छा, अब परमिशन मिल गया पत्नी से। तब इसलिए प्रभुपाद गृह त्याग करके चले आए। आकर उन्होंने देखा कि पहले तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कुछ समय, क्योंकि जब घर पर होते थे 44 साल में उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू किया था।
उसमें सब निबंध लिखते थे। वो दिल्ली आकर वो गौड़िया मठ में ही रुके रहे किसी गुरु भाई के साथ, और वो पत्रिका प्रकाशन के लिए प्रयास करते रहे। वो स्वयं जाते थे डोनेशन मांगने के लिए, और स्वयं लिखते थे पत्रिका के लिए, निबंध लिखते थे, उसको जाते थे छापने के लिए, और जब वो छप जाता था उसको स्वयं लेकर वितरण करने के लिए जाते थे। तो दिल्ली की धूप में, कड़कड़ाती धूप में, एक बार तो बेहोश होकर प्रभुपाद जी गिर पड़े थे रास्ते में, और किसी मित्र ने देखा तो उन्होंने आकर उनको उठाया और उनको साथ लेकर गए। और एक बार किसी गाय ने सींग मार दी थी, जिससे कि प्रभुपाद गिर पड़े थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने कष्ट बहुत उठाया। प्रभुपाद जी लिखते हैं उस समय कि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी जहां अपना पहनने के लिए, वस्त्र खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। जबकि प्रभुपाद का जीवन एक अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था, और पहनना, खाना, रहने के लिए कोई अभाव नहीं था, किंतु भगवान कृष्ण की सेवा के लिए उनको ये सब झेलना पड़ा, ये सब सहन करना पड़ा। तो खाने पीने में पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए, वस्त्र के लिए पैसा नहीं है, तो इस स्थिति में वो भगवान की सेवा करने के लिए निकल पड़े। तो इस प्रकार उन्होंने कई ये पाक्षिक पत्रिका निकालते थे बैक टू गॉडहेड का, और प्रेस में प्रिंटिंग का पैसा नहीं दे पाते थे। तो प्रेस का मालिक ने कहा कि स्वामी जी, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्यों ये पत्रिका प्रिंट करते हैं? और मित्रता के बल पर तो मैं बिना पैसे के ये पत्रिका प्रिंट नहीं कर सकता। तो हर तरह से प्रभुपाद के ऊपर दबाव बना हुआ था। तो प्रभुपाद ने सोचा कि दिल्ली में रहना उनके लिए बहुत कष्ट साध्य हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन चला जाऊं, और वृंदावन से ट्रेन से आकर यहाँ प्रिंटिंग का कार्य करूं। तो प्रभुपाद जी वृंदावन चले आए। वृंदावन में केसी घाट के पास बंसी गोपाल मंदिर है, तो वहीं रहने लगे, और वहां से प्रतिदिन जाते थे ट्रेन से दिल्ली, सुबह और शाम को लौट कर आते थे ये पत्रिका छपाने के लिए। इस प्रकार कई वर्ष तक उन्होंने बहुत कष्ट स्वीकार किए, और उन्होंने देखा कि प्रतिदिन ट्रेन से जाना और शाम को आना ये कष्ट साध्य है। और बाद में किसी ने बताया कि स्वामी जी एक लाइब्रेरियन थे वृंदावन के, उन्होंने बताया कि आप ये पत्रिका क्यों छपाते हैं? पत्रिका लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फेंक देंगे, इसके बदले आप ग्रंथ छपाइए, तो ग्रंथ लोगों के पास सदा के लिए रहेगा, पत्रिका नहीं रहेगी। और एक उनके अनुयायी थे जो मिलिट्री में कार्य कर चुके थे, उन्होंने भी बताया कि स्वामी जी आप ग्रंथ ही छपाइए। तो तब प्रभुपाद ने मनस्थ किया कि अब हम श्रीमद् भागवत का अनुवाद करेंगे। यदि हमें विदेश में जाकर प्रचार करना है तो हमारे पास कुछ ग्रंथ होना चाहिए। केवल मैं जाकर वहां प्रवचन दूं और लोग सुनकर भूल जाएं, तो इससे हमारा प्रचार कार्य नहीं चल सकता। और हमारे गुरु महाराज का जो आदेश कि समग्र विश्व में ये कृष्ण चेतना का प्रचार करना है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा जब तक हमारे पास कुछ ग्रंथ नहीं होगा।
और उनके गुरु महाराज ने ये भी बताया था राधा कुंड में, जब कभी भी तुम्हारे पास पैसा हो तुम ग्रंथ छापो। तो प्रभुपाद ने सोचा कि अब हम श्रीमद् भागवत का अनुवाद करेंगे, किंतु बंसी गोपाल मंदिर में उनको सुविधा नहीं हो रही थी, तो वो राधा दामोदर मंदिर में आ गए और वहाँ उनको बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई, क्योंकि वहाँ रूप गोस्वामी की समाधि है। और वहाँ जब रूप गोस्वामी रहते थे उस समय जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सभी गोस्वामी गण वहाँ आते थे। वहाँ उनका सम्मेलन होता था, कृष्ण चेतना पर बात होती थी। तो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के समाधि के निकट बैठकर प्रार्थना करते थे रूप गोस्वामी से कि अपने गुरु महाराज के आदेश को वो कैसे पालन करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की यही भविष्यवाणी थी और रूप गोस्वामी की आशीर्वाद की भिक्षा वो मांग रहे थे। तो राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद प्रारंभ किया और उसके बाद फिर वो आते थे, उनके पास धन नहीं था ग्रंथ छापने के लिए। वो दिल्ली में जाकर कुछ जाने माने लोगों के पास जाते थे, तो वो कोई उस समय 40-50 रुपया कोई दे दिया, 100 रुपया दे दिया, इससे ग्रंथ नहीं छप सकता था। तो किसी ने बताया कि आप हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जाइए, गीता प्रेस गोरखपुर, उनसे आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। तो प्रभुपाद ट्रेन से गोरखपुर गए हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिलने के लिए, और वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग व्यक्ति थे और गीता प्रेस में छापते थे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ। तो उन्होंने उस समय 4000 रुपया प्रदान की थी प्रभुपाद जी को छापने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रथम खंड जो है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने ये प्रथम खंड छापा श्रीमद् भागवत का, और फिर उन्होंने देखा कि वृंदावन में रहकर और दिल्ली में आकर ये कार्य करना कष्ट साध्य हो रहा है, उसके साथ साथ डोनेशन की व्यवस्था करना ये कष्ट साध्य हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि दिल्ली में रहा जाए तो वहीं रहकर वो प्रेस में जा सके और किसी ग्रंथ को छापने के लिए उसका प्रूफ रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रभुपाद जी स्वयं प्रूफ रीडिंग करते थे और इस प्रकार स्वयं ग्रंथ का वितरण भी करते थे। तो किसी महासज्जन ने छिपीवाड़ा में उनको एक कमरा दे दिया राधा कृष्ण मंदिर में। तो वहां पर वो छत के ऊपर वो कमरा था, तो वहां पर रहकर उन्होंने अनुवाद कार्य चालू रखा और वहीं से वो प्रेस में जाते थे ग्रंथ छापने के लिए। और जब द्वितीय खंड छापने के लिए वो बम्बे गए थे सुमति मोरार से मिलने के लिए, और सुमति मोरार जी ने सहायता की थी श्रीमद् भागवत का दूसरा खंड छापने के लिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने 3 खंड श्रीमद् भागवत के उन्होंने लिखे और उन्होंने छाप दिया था। इस प्रकार उनका ये विदेश जाकर प्रचार कार्य करने की जो नींव है वो वहीं पर दिल्ली में पड़ी। तो इस श्रील प्रभुपाद महाराज इस प्रकार जब 3 खंड उनके श्रीमद् भागवत के हो गए तो उन्होंने उन ग्रंथों को विदेश में भेजने के लिए भी व्यवस्था की। और उस समय बड़े मान्यगण व्यक्ति, भद्र व्यक्ति थे, उनको उन्होंने उपहार के रूप में प्रदान किया, कुछ लाइब्रेरी में देने के लिए व्यवस्था की। तो इस प्रकार उन्होंने अपने इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन की नींव इस प्रकार रखी। कृष्ण।